morning to all. How are you? I'm fine. Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, we are going to solve different questions from the mix and minima chapter, which are the subchapter of the application of differentiations. Okay, so it is actually the very important chapter, subchapter, mix and minima. Every year, at least one question used to come from this mix and minima chapter. So I think you should practice and you should solve this mix and minima chapter questions purportedly, so that you can the common questions in your board exam as well. Okay, in JEE main and advanced exams, mix and minima chapter is also very important, very important it is. Okay, so in this lecture, those questions are going to be solved, which are very important and which are very conceptual actually. Okay, so I think in the last lectures, in the previous lectures, we had solved various word problems. Okay, and in this lecture also we will solve that type of questions which are very important, and I think you should solve this type of questions for the better experience, for the better marks, so that you can achieve that kind of marks and that kind of result in the mathematics subject as well. Okay, so just write the first question. An open tank An open box with a square base is to be made so just write the first question. Okay. Just write the first question. An open box is to be made out an open box made out with square base okay, with square base of a given quantity of cardboard, okay, c square away. Okay, c square away. Show that the maximum volume of the box. The maximum volume of box is c cube by 6 root 3 cubic unit. Okay, so here you have the open box. Open box means what? The top portion is open. Okay, just you can see the box actually. Okay, the match box. It is also can be match box also. Okay, so this top portion is open. That means what? The area should not be counted of this top portion. Okay, only the side portion and the base. This area should be counted here. Okay, the open box means the top portion is actually this nothing is there. That means the area should not be counted. Okay, so only these three portions, that means this side, and the base side. Okay, these three sides area, these three surfaces areas will have to be counted. Okay, so here open box with the square base. That means what? If you have this type of figure, that means box it is, no? Box means okay, this and this type of figure. Okay, and this part is open.
Okay, so that means this surface area and this surface area and this base area will have to be counted. And this open portion, I think in area it will not be comprised. Okay, so square base इसका मतलब क्या होता है? That means कब square होता है? Length और breadth जब equal हो जाता है तभी ये square हो जाता है, obviously. Okay, so that means ये जो फिगर है इसमें ये जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों सेम है, तो ये लिख लो, लेट लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल्स टू x यूनिट, राइट? हाइट वी डोंट नो, व्हाट इज द हाइट हियर वी डोंट नो, तो जस्ट लेट एंड height is y unit. That is, this portion is y unit and this portion is x and this portion is x. Length and breadth are x and the height is y. Okay. Now you need to count here given quantity of cardboard. That means for preparing, for making this box, C square unit cardboard are required. Okay, so that means this quantity of cardboard are used for making this type of box with the open actually this top portion is open. Okay, so here I think C square unit. So when this square unit will be used, when you are just considering the surface area, जब एरिया काउंट होता है तभी तो यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है, वॉल्यूम जब काउंट होता है तब क्यूबिक यूनिट होता है कि नहीं? ठीक है, सो दैट मींस यहां पर ये जो है सरफेस एरिया को काउंट करने के लिए बोला गया है और यहां पर सरफेस एरिया गिवन है सी स्क्वायर. ठीक है, सरफेस एरिया जो है मैं किसका काउंट करूंगा? एक क्यूबॉइड शेप दिखाई दे रहा है, क्यूबॉइड शेप का मुझे यहां पर सरफेस एरिया काउंट करना है, which is given in the question. Okay, and we will have to prove the volume is maximum. That means volume, it is the requirement. What is given here? Surface area is given and we need to prove the volume is maximum. Okay, तो volume को prove करना है. Given क्या है? Surface area है. देखो यहाँ पर here S equals to surface area का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 into length into breadth plus breadth into height into length. So that means this part area x square, this part area xy plus xy and बाहर जो है एक 2 रहेगा. So that means S equals to twice x square plus 4xy. It is your equation number 1. So whenever this conversion will be required, this equation number 1 will be used. Okay. Now volume, we need to find the volume is maximum. That means here V equals to, फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट मींस एक्स स्क्वायर वाई. ओके, now here the two variables are used, so at least one variable should be converted. Okay, this y को हम लोग चेंज कर लेते हैं. दैट मींस एक्स स्क्वायर y की जगह देखो तो s माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर बाई 4x है. ठीक है, y का जगह देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां पर लिख लो, फ्रॉम 1. ठीक है, तो अब देखो पूरा x में कन्वर्ट हो गया. नाउ यू कैन टेक द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पर y तो है ही नहीं, y को हम लोग पूरा कन्वर्ट कर दिए x में. अब दो वेरिएबल यूज करके तो डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते हम लोग. एटलीस्ट वन वेरिएबल शुड बी कन्वर्टेड टू द अनदर वन. ओके, सो दैट मींस फ्रॉम 1 अब जो है फ्रॉम 1 जाओ और डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो dv by dx. तो अच्छा यहां पर देखो, I think the surface area was given in the question. So that means in place of s,
C square should be used. C square should be used because in the question just you can see the surface area, the total quantity of the cardboard is C square square root. That means surface area is given. So in place of S, you should use C square. C square. Right? Okay. Now, as I told you that whatever is given in the question, that will be constant. Given means what? You know the value. Okay. आप लोगों को पता है ये वैल्यू, तो किसी भी चीज का वैल्यू अगर पता हो तो वो वेरिएबल कैसे हो सकता है? वो तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है कि नहीं? तो वो कांस्टेंट होगा, है कि नहीं? तो दैट मींस सी स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट होगा. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. सो b इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं कैंसिल करूं, x c स्क्वायर माइनस ट्वाइस x स्क्वायर बाई 4. नाउ dv बाई dx इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस 2x क्यूब है कि नहीं? सो दैट मीन्स 6x स्क्वायर बाई 4 तो यहां पर है ही. ठीक है. नाउ सेकेंड स्टेप इज dv by dx equals to 0. Now c square, for the maximum and minimum value, at least we need to find the point where this maxima and minima conditions are going to be checked. Okay. So for finding this point, we need to construct an equation by which you can get the values of x here, values of the point values, actually the coordinate. C square minus 6x square by 4 equals to 0. So that means c square minus 6x square equals to 0. That means यहाँ से x square equals to c square by 6. X square equals to what? C square by 6. Now, what is the value of x here? X equals to c by root 6. This is the value of x. Now, the second part is you need to find the second order differentiation. Now d2v by dx2 equals to, ये है आपका dv by dx. Now 1 by 4 तो है ही, और यहाँ पर माइनस c स्क्वायर तो 0 हो जाएगा because c स्क्वायर is constant here, and 6x square, that means minus 12x. Okay. So at x का वैल्यू क्या मिला था? c by root 6. Now we need to verify the value of the second order differentiation, whether it is negative or positive. So that means at this point, that means you need to write like this: x equals to c by root 6. Now 1 by 4 minus 12 into x, this. So I think the ultimate value will be negative. Here you can see ultimate value will be negative, less than 0. Agree? After cancellations, all the things after this calculation, the ultimate result will be negative. That means less than 0. So that means the second order differentiation of the volume is negative, less than 0. So when it will be possible? This condition is possible when the particular function is maximum. I think we had written these things. Second order differentiation less than 0. I think it is the maximum case. Okay. So what is the function here? Volume. यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम लेके डील कर रहे हैं. So volume is maximum at x equals to c by root 6. Okay. Now using this equation number 1, can I find the value of y? Obviously we can find. Now from 1 क्या था? Twice x square plus 4xy. Now c square equals to twice x square, that means c square by 6 plus 4 into x means c by root 6 into y. So that means c square, यहाँ पर ये तो 3 है, c square by 3 plus 4cy by root 6. So c square minus c square by 3 equals to
4cy बाई रूट 6। अब तो थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, तो यहाँ पर 3c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दैट मींस 2c स्क्वायर बाई 3, 4cy बाई रूट 6। अब थोड़ा कैंसिलेशन करो, यहाँ कैंसिलेशन होगा, यहाँ पर ये c एक एक कैंसिल होगा, यहाँ पर ये 2 कैंसिल होगा, तो बाकी क्या रहेगा, c बाई 3 इक्वल्स टू 2y बाई रूट 6। दैट मीन्स y इक्वल्स टू रूट 6c बाई 6, रूट 6c बाई 6। तो यहां पर कैंसिलेशन करिए, यहां पर रूट 6, दैट मीन्स y इक्वल्स टू c बाई रूट 6। एक ही आ रहा है c बाई रूट 6, तो दैट मीन्स x का वैल्यू भी c बाई रूट 6, y का वैल्यू भी c बाई रूट 6। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड हियर, here the volume is I think c cube by 6 root 3 should be proved. Okay, so यहाँ पर x और y का वैल्यू आपको मिल गया। अब so वॉल्यूम दिखाओ, वॉल्यूम अगर यहाँ पर c ये प्रूफ हो गया तो बेटर है। so ये नेक्स्ट लाइन है, ये तो पहले का चला गया। v equals to x square y था, now put the values। x मतलब क्या है, c by root 6 whole square into c by root 6। So that means c square by 6 into c by root 6। ओके, अच्छा यहां पर देखो, ये जो प्रूफ है, प्रूफ नहीं आ रहा है, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। यहां पर देखो, जो इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने फॉर्म किया था, इक्वेशन नंबर 1, ओके, उस इक्वेशन नंबर 1 में ट्वाइस एक्स स्क्वायर ये नहीं होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ये ओपन बॉक्स था ना, ये ओपन था, दैट मींस ऊपर का पोर्शन तो खुला हुआ है, सिर्फ नीचे का यहाँ पर जो एरिया है वो काउंट होगा। नीचे पोर्शन जो है वो स्क्वायर बेस है, दैट मींस एक्स स्क्वायर होगा, ऊपर का तो होगा नहीं यहाँ पर। सो दैट मींस ये ट्वाइस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने लिखा था, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, वहां पर ट्वाइस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, वहां पर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, वहां पर एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ये सब एक्स स्क्वायर होगा, है कि नहीं, ये जो है ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स क्यूब होगा, दैट मींस ये 3x स्क्वायर होगा, है कि नहीं। सो दैट मींस ये 3x स्क्वायर होगा, तो c स्क्वायर बाई 3 होगा और ये रूट 3 होगा, ठीक है। तो यहां पर भी सेम थोड़ा कैलकुलेशन कर लो फ्रॉम 1, ये जो x स्क्वायर है ये थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। ये तो ओपन बॉक्स था, तो ओपन बॉक्स होने से तो x स्क्वायर होगा, so that means x square, that means c square by 3 plus 4 into c by root 3 into y, so that means c square minus c square by 3 equals to 4cy by root 3, so that means 2c square by 3 equals to 4cy by root 3, so that means यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, यहाँ पर c से कैंसिल, that means y equals to यहाँ पर 2y इक्वल्स टू c बाई रूट 3, so that means y equals to c बाई 2 रूट 3, y equals to क्या मिला, c बाई 2 रूट 3 मिला, ठीक है, c बाई 2 रूट 3। थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा चेंज कर लो, वहां पर ये एक्स स्क्वायर होगा, नॉट ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ओपन बॉक्स है ये। अगर यहाँ पर क्लोज्ड बॉक्स होता तब ये ठीक था, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रूफ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देखो ये बाकी सब ठीक है, तो यहाँ पर अभी जस्ट वैल्यू पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर वाई, दैट मीन्स व्हाट, c बाई रूट 3 होल स्क्वायर इंटू c बाई 2 रूट 3। सो यहां पर क्या है, c स्क्वायर बाई 3 c बाई 2 रूट 3, दैट मीन्स c क्यूब बाई 6 रूट 3 क्यूबिक, क्योंकि ये वॉल्यूम है, सो दैट मीन्स क्यूबिक क्यूब, दैट मीन्स द वॉल्यूम इज c क्यूब बाई 6 रूट 3, एंड दैट आई थिंक दैट वाज
the proof actually. Okay, proof. So just remember this thing. Whenever this open box will be given, then the total surface area of this open box will be like that. It's x square plus 4xy. This base portion area should not be counted. Sorry, the top portion area should not be counted. अब टॉप ही खुला रहेगा, नीचे तो खुला नहीं रहेगा. नीचे खुला रहेगा तो सब तो नीचे चला जाएगा ना. ऊपर ही खुला रहेगा, टॉप पोर्शन ही खुला रहेगा. अब टॉप खुला रहे या बेस खुला रहे, क्या फर्क पड़ता है? ये तो एरिया तो यही रहेगा, है नहीं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. A figure consists a semicircle. A figure consists a semicircle. A figure consists a semicircle on a rectangle. On a rectangle. Let's try this question. A figure consists a semicircle on a rectangle on its diameter of the figure. Find, given the perimeter on its diameter of the given perimeter. Okay, of the given perimeter, but we don't know the exact value of the perimeter, but perimeter is given of the figure. ठीक है, एक फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है of the figure. Find its dimensions in order that the area may be maximum. The area may be maximum. That means एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ऐसा है. अब रेक्टेंगल के ऊपर दिस सेमी सर्कल इज सरमाउंटेड, दिस सेमी सर्कल पोर्शन, okay, on its diameter. That means this line is the diameter of this semicircle. Okay, now according to the concept, as I think this thing I told you, okay, whenever this rectangle is drawn on the circle, then the length and breadth of this rectangle should be considered as the multiple of 2. कैसे? देखो, ये length twice x होगा, ये twice y होगा, क्योंकि ये सर्कल या फिर सेमी सर्कल कुछ भी हो, सर्कल सेमी सर्कल हाफ है, सेमी सर्कल तो हाफ होता है सर्कल का, तो बट कॉन्सेप्ट वही होगा. तो आपको यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेड्थ एज्यूम करना है वो मल्टीपल ऑफ 2 समथिंग चूज करना है. सो दैट मींस लेट सर्कल के अंदर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर कुछ भी रहे, आपको ऐसे ही लेंथ ब्रेड्थ एज्यूम करना है. जब ऐसा लिखा रहेगा, a rectangle is inscribed in a circle, a square is inscribed in a circle. Okay, so let length twice x unit, breadth twice y unit. Okay, what is given here? Given perimeter. That means the whole figure perimeter is given. It is the whole figure. Okay, the whole figure perimeter is given here. Okay, now
of the figure, find its dimensions in order that the area may be maximum. That means the whole portion area will be maximum. Okay, and after that you need to find the dimensions. That means this length and breadth should be found. Okay, now perimeter P equals to होल फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, ये दोनों तो ऐड होगा, दैट मींस 4y. ओके, ये पोर्शन ट्वाइस x और सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई x है कि नहीं. सेमी सर्कल के एरिया, क्योंकि सेमी सर्कल का डायमीटर यहाँ पर ट्वाइस x है, दैट मींस रेडियस विल बी x. तो पूरा सर्कल का अगर 2 पाई x है तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई x होगा. तब मैंने बोला यहाँ पर देखो सिर्फ ट्वाइस x काउंट किया है, और ये जो पोर्शन है ये तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर निकाल लिया ना आपने, उसमें ही तो ये वाला पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व हो गया. तो इस पोर्शन को बार बार कंसिडर करना ये तो पॉसिबल नहीं है क्या. तो जब आपने सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल लिया, दैट मींस ये पोर्शन ऑलरेडी इज काउंटेड. ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन. सो दिस पोर्शन ट्वाइस 4y and this portion twice x and this pi x. Simple thing. It is your equation number 1 and it is given P is constant here because given perimeter. It is given in the question. Okay. Now मुझे क्या प्रूव करना है, area is maximum. Okay. Now area A equals to एरिया यहाँ पर तो जैसा है वैसा ही रहेगा. एक रेक्टेंगल के एरिया फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मींस ट्वाइस x इनटू ट्वाइस y. ये है रेक्टेंगल का. प्लस सेमी सर्कल के एरिया क्या होता है, ऐसे तो नॉर्मल सर्कल के एरिया पाई x स्क्वायर है कि नहीं. तो यहाँ पर क्या होगा, पाई x स्क्वायर बाई 2, पाई x स्क्वायर बाई 2. ठीक है. एरिया तो दैट मींस इस पोर्शन से जो स्पेस कवर किया गया है वही एरिया होता है, ये होता है. अब इस पोर्शन से जो एरिया कवर किया गया है वो ये है नहीं. तो दोनों मिला के टोटल फिगर के एरिया मिल गया. तो दैट मींस A इक्वल्स टू 4xy प्लस पाई x स्क्वायर बाई 2. ये इट इज योर इक्वेशन नंबर, सॉरी इट इज नॉट द इक्वेशन नंबर. नाउ यू नीड टू कन्वर्ट दिस y or x, whatever it is, but here y conversion is very much easier than this x conversion. Okay, so y पे जाकर from equation number 1 find the value of y from this part. Okay, so I think 4x equals to 4xy, y की जगह देखो p minus twice x minus pi x by 4 plus pi x square by 2. So it is the conversion. Now this 4 you can cancel. So now A equals to px minus twice x square minus pi x square plus pi x square by 2. So dA by dx. Obviously with respect to x the differentiation should have been taken because there was no term including y, only the x term is there. So p minus 4x minus 2 pi x plus 2 pi x by 2. These two cancel. So that means dA by dx equals to p minus 4x minus pi x. So it is the dA by dx. Okay. Now as you all know, for the maximum and minimum value, one point should have been found here. So now dA by dx equals to 0. So that means p minus 4x minus pi x equals to 0.
So that means यहाँ पर तो p माइनस x अगर कॉमन लो तो पाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर x इक्वल्स टू आई थिंक p बाई पाई प्लस 4. It is the value of x. Now in this, that means at this value, the second order differentiation should have been found. Okay, second order differentiation. Now d2a by dx2 क्या होगा? ये p 0 हो जाएगा because p is constant given perimeter. Minus 4 minus pi. So obviously it is less than 0. Because यहाँ पर तो x है ही नहीं, x किसके जगह बिठाऊं यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑलरेडी एक आंसर ही आ गया, एक कांस्टेंट आंसर आ गया जो ऑब्वियसली लेस देन 0 है. व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ x, x का कुछ भी वैल्यू तो यहाँ पर पुट करो, x तो है ही नहीं, पुट कहां करो? आंसर तो यहाँ पर कांस्टेंट आ गया और वो भी लेस देन 0 आ गया क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से ये पाई प्लस 4 हो जाएगा लेस देन 0. सो ऑब्वियसली यहाँ पर एरिया जो मैक्सिमम आ रहा है ये तो श्योर है. सो एरिया इज मैक्सिमम एट, ये फॉर्मेलिटी है आपको लिखना पड़ेगा, p बाई पाई प्लस 4. ओके, सो ये तो सो नाउ फ्रॉम 1 क्या था? p इक्वल्स टू 4y प्लस ट्वाइस x प्लस पाई x. x का वैल्यू बिठा दो, p 4y 2 इंटू p बाई पाई प्लस 4 पाई इंटू p बाई पाई प्लस 4. ठीक है, तो यहां पर p 4y, तो यहां पर p बाई पाई प्लस 4 अगर कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? ये p बाई पाई प्लस 4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, दैट मींस पाई प्लस 2. यहां से y का वैल्यू निकाल दो. y का वैल्यू क्या होगा मिल जाएगा आपको. y का वैल्यू क्या है? सो p माइनस p पाई प्लस 2 बाई पाई प्लस 4 equals to 4y. So that means pi p plus 4p minus pi p minus 2p by pi plus 4 equals to 4y. So that means pi p cancel, यहाँ पर 2p रहेगा, है कि नहीं? 2p by pi plus 4 equals to 4y. So that means यहाँ पर ये 2 cancel, so y equals to p by 2 into pi plus. So dimensions निकालना है आपको. So the dimensions, एक था twice x, that means 2 into x का वैल्यू क्या था? p by pi plus 4. So that means 2p by pi plus 4. ये एक डायमेंशन मिला. एंड twice y, ये दूसरा डायमेंशन था रेक्टेंगल का, ब्रेड था. So twice y 2 into y means p by 2 into pi plus 4, which is 2 cancel, p by pi plus 4. तो ये है another dimension. So that means these are the dimensions of the rectangle. Of the whole figure you can say, because the twice is the diameter of this semicircle. Okay. Very important question. Okay. Just write this question. A square piece of side 24 centimeter is to be made. Okay, very important question. Just very conceptual also. So be attentive while you are solving this question. Okay.
Now, now just like this question, a square piece of side, a square piece of side 24 centimeter is to be made into a box, without top, okay, without top, by cutting a square, by cutting मतलब काट किया गया, by cutting a square from each corner, by cutting a square from each by cutting each corner, okay, and folding up the flaps and folding up the flaps to form a box, folding up the flaps to form a box. What should be the side of the square? What should be the side of the square? What should be the side of the square to be cut off? So that the volume of the box is maximum. So that the volume will be maximum. Also find this maximum volume. Also find the maximum volume. मतलब very conceptual question, and this type of questions actually are not so important for the board exams. These type of questions are very important for clearing the concepts as well. Okay, if you are solving these type of questions, then different types of ideas and different kinds of actually these concepts will be inculcated in your mind, and that will be very much useful for while you are facing this JEE main and advanced level exams. Okay, these type of questions are very important and very impressive also. Okay, now according to this question, you have the square shape paper, square shape paper, whose sides are given in the question 24 centimeter. That means length is 24, breadth is 24. So that means a square, this is a square, length 24 centimeter and breadth 24 centimeter. Okay, now according to the question, from each corner square shape is being cut off, okay, for forming a box. Okay, our prime target is to anyhow we need to make a box here. Okay, so for making this box, this square shape, this square, one particular square is being cut off from each and every corner से स्क्वायर शेप कट किया गया. ठीक है, अब कट क्यों करते हैं? जैसे
एक एग्जांपल, जैसे कोई भी साड़ी, कोई भी चीज का बॉक्स तो आपने देखा ही है। बॉक्स क्या होता है? ओरिजिनली अगर ये जॉइंट जो है वो अगर नहीं रहे तो ये एक फ्लैट पेज होगा, फिर हर एक कॉर्नर से ऐसे पेज को फोल्ड किया गया है कि? तो यहां पर जो ये फोल्ड किया गया, कॉर्नर में कुछ पेपर कट करना पड़ता है। कट करने के बाद देखना, आप जब ऐसे फैलाएंगे, ये कॉर्नर में जो है ना ऐसा शेप का कुछ रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, फिर यहां से फोल्ड होके और यहां से फोल्ड होके ऐसे ज्वाइन होता है। तो ये जो पोर्शन यहां पर कट हुआ है, ये स्क्वायर शेप का कट हुआ है कि? तो यहां पर बॉक्स फॉर्म करना है, तब कॉर्नर से तो आपको स्क्वायर शेप तो यहां पर से तो हटाना ही है। अब हर जगह स्क्वायर शेप जो है सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे होने से नहीं चलेगा, तो बॉक्स का नाप जो है वो सेम नहीं होगा, इधर उधर हो जाएगा। हर जगह, हर एक कॉर्नर से आपने स्क्वायर शेप काटा है ना उसको, तो हर जगह स्क्वायर शेप का एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स देखो, यहां से हम लोगों ने एक स्क्वायर शेप काटा, यहां से हम लोगों ने एक स्क्वायर शेप काटा, यहां से भी हम लोगों ने एक स्क्वायर शेप काटा, यहां से भी हम लोगों ने एक स्क्वायर शेप काटा। अब हर एक स्क्वायर का एरिया सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगा तो बॉक्स का शेप भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर इक्वल शेप का स्क्वायर काटा गया, तो हम लोग ले लेते हैं, ये जो है ये एक्स है, एक्स, ओके, ये एक्स है सब। लेंथ ब्रेथ तो सेम होना चाहिए, और स्क्वायर है, लेंथ ब्रेथ तो सेम ही होगा, ठीक है। अब हर स्क्वायर का यहां पर एरिया भी सेम होगा। तो अब क्वेश्चन में जाओ, अब यहां से किया, ये स्क्वायर शेप कट गया, ये कट गया, अब इससे यहां पर ऐसे फोल्ड होगा, यहां से ऐसे फोल्ड होगा, यहां से भी ऐसे फोल्ड होगा, यहां से भी ऐसे फोल्ड होगा, तो कुछ बॉक्स टाइप का मिलेगा, जिसका ऊपर जो है टॉप पोर्शन जो है वो खुला रहेगा, है कि नहीं। तो यहां पर अब क्वेश्चन में जाओ, a square piece of this 24 centimeter is to be cut without top. Yeah, these are the keywords, just mark it. By cutting a square form of each corner, from each corner, just we have cut this, and folding up the flap to form a box. That means ऐसे fold करना है आपको, ठीक है। What should be the side of the square to be cut off so that the volume, that means ये x का वैल्यू निकालना है। बस यहाँ पर ये जो है घुमा फिर का बात एक ही है, यहाँ पर ये आपको ये x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखो, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना है, कब? जब वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर तो घुमा फिरा के जो है वो बात एक ही। तो a square piece of water 24 centimeter, so that means देखो, अब जो है बॉक्स आपने बना लिया, फोल्ड कर लिया, बॉक्स आपने बना लिया, so that means ये जो पोर्शन है वो फोल्ड के ऊपर आ जाएगा, ये जो पोर्शन है, so that means बाकी रहेगा सिर्फ ये पोर्शन, आई थिंक, जो बॉक्स के अंदर रहेगा, और ये वाला सब पोर्शन तो फोल्ड होके तो ऐसे ही से आ जाएगा, है कि नहीं, है। सो जब आपने बॉक्स बना लिया है, ओके, देन लेंथ और ब्रेथ यहां पर क्या होगा, तो देखो ये जो है इसका लेंथ यहां पर टोटल तो यहां पर 24 है, हर जगह तो 24 ही है, क्योंकि ये स्क्वायर पीस ऑफ आई थिंक स्क्वायर पीस है कि नहीं। तो हर जगह यहाँ पर 24 ही होगा। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, 24 माइनस यहाँ से एक x चला जाएगा, यहाँ से एक x चला जाएगा, दैट मीन्स 24 माइनस ट्वाइस x, ये किसका साइड होगा, इस पोर्शन का साइड होगा, दैट मीन्स ये भी सेम ही होगा, है। तो ये कितना का होगा, ये यहाँ पर भी देखो ये x है, ये x है, सो यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये भी 24 माइनस ट्वाइस x ही होगा, ये स्क्वायर पीस है, लेंथ तो सेम ही है। ये है आपका लेंथ और ब्रेथ मिल गया। अब जो है स्क्वायर पीस तो आपने काट लिया,
स्क्वायर पीस जो काट के ये जो बॉक्स बनाया है वो बॉक्स का शेप क्या होगा, वो भी स्क्वायर शेप का ही होगा। दैट मींस ये होगा बॉक्स का पोर्शन, ये होगा यहाँ पर बॉक्स का पोर्शन, है क्या नहीं। तो इसमें लेंथ भी 24 माइनस ट्वाइस एक्स है, ब्रेथ भी 24 माइनस ट्वाइस एक्स है। दैट मींस इट इज सो। अब आते हैं नाउ लेंथ, ऐसे लिखो, साइड ऑफ स्क्वायर पीस is 24 centimeter. So side of box is 24 minus twice x centimeter. Okay, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है कि नहीं। So now अब आ जाओ, V equals to, तो यहां पर देखो, ये फोल्ड करने के बाद लेंथ तो 24 माइनस ट्वाइस एक्स, ब्रेड भी 24 माइनस ट्वाइस एक्स। ये जो फोल्ड किया है ना आपने, चारों तरफ आपने फोल्ड किया है, वो फोल्ड, ये हाइट कितना होगा, एक्स होगा, है कि नहीं, क्योंकि एक्स यूनिट आपने ये जो है फोल्ड किया है, हर कॉर्नर से तो आपने स्क्वायर शेप काटा है ना, हर एक का लेंथ क्या था, एक्स था। तो दैट मींस फोल्ड करने के बाद ये जो पोर्शन है ये एक्स होगा, चारों तरफ ये एक्स 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 रहेगा, लेंथ 24 माइनस ट्वाइस एक्स, ब्रेथ भी 24 माइनस ट्वाइस एक्स। दैट मींस ये एक क्यूबॉइड शेप होगा। तो वॉल्यूम आपको क्यूबॉइड का कंसीडर करना है। हियर वॉल्यूम V equals to 24 minus twice x whole square into x. Okay, so that means V equals to, ये अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में तोड़ दो, 24 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 24 इंटू 2 एक्स प्लस 4x स्क्वायर, और ये बाहर x। दैट मींस V इक्वल्स टू 24 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 96x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये है V, है कि नहीं, वॉल्यूम। वॉल्यूम को आपको दिखाना है मैक्सिमम। सो dV बाई dx इक्वल्स टू 24 होल स्क्वायर माइनस 96 इंटू 2 x प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मीन्स dV बाई dx equals to 24 whole square minus 192x plus 12x square. ठीक है, now dV by dx equals to 0. dV by dx equals to 0. So dV by dx equals to 0. That means 24 whole square minus 192x plus 12x square equals to 0. ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहां से 24 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 576 24 576 minus 192x plus 12x square equals to 0. That means यहां से अगर मैं 12 कॉमन लूं, I think 48, okay, minus 16x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। सो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 48, 12x माइनस 4x प्लस 48 इक्वल्स टू 0।
So that means x common, x minus 12 minus 4, x minus 12 equals to 0. That means x minus 12, x minus 4 equals to 0. ठीक है, तो दैट मीन्स यहां से x का दो वैल्यू मिल रहा है, x का वैल्यू 12, x का वैल्यू 4, दो वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? सो नाउ ये dv by dx, now d2v by dx2, ये कितना आता है? माइनस 190, ये तो 0 हो जाएगा, 192 प्लस 24x, ठीक है? So at x equals to 4, d2v by dx2 minus 192 plus 24 into 4, ठीक है? So minus 192 plus 96, ये less than 0 है. So that means volume is maximum at x equals to 4. So that means ये जो स्क्वायर शेप का आपने काटा है उसका डायमेंशन क्या लिया था हम लोगों ने? x लिया था और x का वैल्यू क्या मिला? 4. So that means और 12 का आपको चेक नहीं करना है क्योंकि वॉल्यूम तो मैक्सिमम दिखाना है आपको. अब 12 इंटू 4, 24 इंटू 12, यहाँ पर तो ये मैक्सिमम नहीं रहेगा, ये तो मिनिमम चला जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा. तो यहाँ पर ये कंसीडर नहीं करना है, ठीक है? x इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स द स्क्वायर शेप, जो स्क्वायर शेप आपने लिया था उस स्क्वायर शेप का जो साइज है वो x सेंटीमीटर करके है, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहां पर लास्ट स्टेटमेंट लिख देना है. सो द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर इज x सेंटीमीटर. Find the volume of the largest cylinder. Find the volume of largest cylinder that can be inscribed in a sphere. स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया गया ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर. दैट मीन्स एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर जो है एक स्फीयर के अंदर, दैट मीन्स एक स्फीयर, एक गोला के अंदर इंस्क्राइब किया गया है कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पर फिगर थोड़ा ड्रॉ करूं, इट इज योर स्फीयर, टू डायमेंशनल फिगर है. स्फीयर तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, सर्किल ही ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर. तो ये है, इट इज योर सिलेंडर, ओके, इट इज योर सिलेंडर, ये, ठीक है? तो ये है सर्कल का जो है वो सेंटर है. Find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r. That means ये जो है, ये जो लेंथ है ना, ये क्या है? ये स्मॉल r है. ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, देखो रेडियस ऑफ द स्फीयर है ना, ये तो गिवन है. तो दैट मीन्स r इज कांस्टेंट. बट प्रॉब्लम ये है, सिलेंडर का यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही सिलेंडर के बेस रेडियस गिवन है, ना ही सिलेंडर का हाइट गिवन है. तो व्हाट शुड आई डू हियर? वी शुड एज्यूम दिस बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. लेट, because we have to deal with the volume of the largest cylinder. So for finding the volume of the cylinder, we need to consider the base radius and the height first. Without taking these things, we can't get the volume of the cylinder. Okay.
So at first we need to assume let height of cylinder equals to h centimeter, base radius equals to कुछ भी ले सकते हैं, बेस रेडियस कैपिटल आर ले लो, ठीक है। ये दैट मीन्स ये पूरा पोर्शन यहां पर h है और ये पोर्शन यहां पर r है, ठीक है। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड स्फीयर रेडियस इज r सेंटीमीटर, ये गिवन है, ओके। नाउ अगर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, उस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो यहां पर अगर ये पूरा लेंथ एज हो जाए तो ये वाला लेंथ एज बाई 2, ये वाला लेंथ एज बाई 2 काफी होगा। इंस्क्राइब किया गया है ना, तो दैट मीन्स पूरा सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है, तो जितने सर्कल का जो सेंटर होगा वो ठीक बीच में रहेगा, ठीक है। अगर ये सेंटर बीच में ना हो तो ये जो शेप है वो जो सिलेंडर होगा ही नहीं, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, तो जब माने कोन हो या फिर सिलेंडर हो, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, पूरा इंस्क्राइब किया गया है, दैट मीन्स ये जो सर्कल का सेंटर है वो मिडिल पॉइंट होगा, किसका, सिलेंडर का जो हाइट है उसका, दैट मीन्स सिलेंडर के बीचों बीच रहेगा। सो नाउ ये जो राइट एंगल फॉर नाम दे दो ये ओ ए बी, फॉर ओ ए बी, फॉर ओ ए बी ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आर तो कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, देखो जो गिवन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ हम लोग को किससे डील करना है, वॉल्यूम। नाउ V इक्वल्स टू किसका वॉल्यूम, लार्जेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम। हम लोग वॉल्यूम सिलेंडर का क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, दैट मींस पाई आर स्क्वायर इनटू एच। सिलेंडर का हाइट मैंने क्या लिया था, एच लिया था, बेस रेडियस तो कैपिटल आर लिया था, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर भी है एच भी है, एटलीस्ट one variable should be converted to the another one. That means यहाँ पर h कन्वर्ट करो या फिर r स्क्वायर कन्वर्ट करो, आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, पूरा इक्वेशन को एक ही फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ पर r स्क्वायर कन्वर्ट करना ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि h कन्वर्ट करेंगे तो रूट आ जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर माइनस h बाई 2 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू h, ये ज्यादा आई थिंक इजी होगा। तो यहां पर क्या होगा, v इक्वल्स टू पाई, अगर मैं अंदर घुसा दूं उसको, आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाई 2। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना ठीक तरह से, पाई आर स्क्वायर एच, दैट मींस आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला, ठीक है, ये फ्रॉम 1। अब तो देखो पूरा एक्सप्रेशन एच में चला, आप यहां पर एच का वैल्यू भी पुट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, ओके। कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता, रूट आ जाता, ठीक है, बट अल्टीमेट रिजल्ट एक ही रहता। सो आ जाओ, अभी dv बाई dh निकालना है, पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाई 2। नाउ dv by dh equals to 0, that means r square minus 3h square by 2 equals to 0। तो यहां से h का वैल्यू 3h square by 2 equals to r square, that means h square equals to 2r square by 3। so h equals to
√2r/√3 ये है एज का वैल्यू, है कि नहीं? ठीक है। सो नाउ up to second order, that is d2b by dh2 equals to pi r square तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन रहेगा, 3/2 भी रहेगा और इधर h स्क्वायर है ना, ट्वाइस h होगा, 2 कैंसिल, तो d2b by dh2 equals to pi माइनस 3h, h मतलब क्या है, √2/√3r। सो माइनस साइन है तो ऑब्वियसली ये लेस देन 0 ही रहेगा, r तो यहाँ पर कांस्टेंट है, स्मॉल r है। ठीक है। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h equals to √2/3r। इसमें तो ये h हम लोगों ने क्या लिया था, सिलेंडर का हाइट, तो हाइट मिल गया सिलेंडर का। नाउ फ्रॉम वन में जाओ, वन क्या था, r स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस h/2 होल स्क्वायर। तो इसमें बिना दो h का वैल्यू, स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 2/3 r स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ये 2, दैट मीन्स r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर by 6 इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर, दैट मीन्स कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर by 6, दैट मीन्स r इक्वल्स टू 5/6 एक रूप में रहेगा और इधर r। सो ये है सिलेंडर का बेस रेडियस, ये है सिलेंडर का हाइट। These are the answers, and I think you should find the volume here. So volume V equals to क्या था, पाई r स्क्वायर, दैट मीन्स ये पाई r स्क्वायर इंटू h। तो बस ये निकालो, पाई 5/6 r स्क्वायर इंटू √2/√3 r। तो ये कैलकुलेशन करके जितना होगा वही होगा वॉल्यूम, है कि नहीं? सो दैट मीन्स V इक्वल्स टू 5√2/6√3 पाई r क्यूब, ये है वॉल्यूम, जो कि लार्जेस्ट होगा। लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बोला गया ना, इट मींस इट इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम। ओके, नाउ show that a cylinder of a given volume, show that a cylinder of a given volume, show that a cylinder of a given volume which is open at the top has the minimum total surface area provided its height is equal to the radius of its base. So here the next question is, let's write the next question. Show that a cylinder of a given volume, show that a cylinder of given volume, that means given volume is constant, given volume which is open at the top, which is open at the top, open at the top, has minimum
सरफेस एरिया टोटल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड its height provided its height is equal to the radius is equal to the radius of its base. That means one cylinder is there with the given volume, that means volume is constant here, okay, which is open at the top, that means top portion is open, has the minimum surface area, that means this cylinder surface area is minimum. You need to prove these things, but one condition is there. Condition is what? The height should be equal with the radius, okay, provided, that means it is the condition, okay. Now, so whatever it is, volume and the total surface area of the cylinder, we need to consider the base radius and the height first, because these are not given in the question, okay. So let base radius equals to capital R and smaller and height equals to H unit, cylinder base radius, ठीक है, cylinder. Given volume, given V equals to pi R square H, it is given, okay. V is given and V is constant here because volume is given, constant. यहाँ पर volume exactly कितना है वो given नहीं है, but volume is given, but value whatever it is, हम लोगों ने V तो ले ही लिया, V का value कुछ भी हो सकता है. किसी किसी क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम कुछ दिया जाएगा, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा. अगर दिया गया तो v के जगह वही वैल्यू पुट कर दोगे, अगर नहीं दिया गया तो v भी रहेगा कांस्टेंट. v यहां पर क्या होगा? कांस्टेंट. नाउ सरफेस एरिया को हम लोग को यहां पर मिनिमम या फिर मिनिमम लिखना है. सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टॉप पोर्शन खुला हुआ है, एग्री. सो सरफेस एरिया S इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, ये है सिलेंडर का जो बेस है, बेस पोर्शन का एरिया. दैट मींस ये है, ये तो ओपन है, इसके एरिया तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो इसका होगा पाई R स्क्वायर बिकॉज इट इज अ सर्कल, प्लस 2 पाई R H. ये है कार का जो साइड का एरिया है वो 2 पाई R, दैट मींस सर्कुलर पोर्शन एंड H. सो यहां पर किसी एक का वैल्यू हम लोग को यहां पर कन्वर्ट करना है, एच का ही इजी होगा. सो दैट मींस s इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r इनटू h मींस v बाय पाई r स्क्वायर. वेरी गुड. हियर पाई cancel and this r cancel. So that means s equals to pi r square plus twice v by r. हो गया. अब जो है एडिशन प्रोसेस ds by dr and value blah 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 should be done. So मिनिमम सरफेस एरिया दिखाना है. सो यहाँ पर ds by dr इक्वल्स टू, ये सब क्वेश्चन बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत कैलकुलेशन होता है ना. पाई इंटू ट्वाइस r प्लस ट्वाइस v माइनस 1 बाई r स्क्वायर, है कि नहीं. हाँ, सो 2 पाई r माइनस ट्वाइस v बाई r स्क्वायर, ये है ds बाई dr. नाउ ds बाई dr इक्वल्स टू 0. r का वैल्यू निकालो, फिर तो एक ही प्रोसेस है, प्रोसेस तो एक ही है. ds बाई dr equals to 0. So 2 pi r equals to 2v by r square. यहाँ पर 2 cancel. So r cube equals to v by pi.
यहाँ पर तो एक पाई रहना चाहिए। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 क्या था? V pi r square h. So that means h equals to V by pi r square. तो r equals to V by pi whole to the power 1 by 3. ठीक है, ये r का वैल्यू है, that means base radius of the cylinder. Now d2s by dr2 निकालो, d2s by dr2 निकाल के देखो कितना होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 पाई हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा 2b माइनस ये, अच्छा यहां पर ये माइनस होगा, ये माइनस 2 बाई आर क्यूब। ठीक है, सो दैट मीन्स 2 पाई प्लस 4b बाई आर क्यूब। सो एट r इक्वल्स टू v बाई पाई होल टू द पावर 1 बाई 3 d2s बाई dr2 का वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। सो 4b बाई आर क्यूब है ना, दैट मीन्स v बाई पाई है कि नहीं? सो आई थिंक v cancel, so that means I think 6 pi greater than 0. So surface area क्या है? मैक्सिमम आ रहा है, greater than 0 है। So surface area is maximum किस पॉइंट में? At r equals to v by pi whole to the power 1 by 3। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को प्रूफ क्या करना था कि हाइट जो है वो रेडियस के साथ इक्वल होगा, है कि नहीं? सो यहां पर हाइट, तो ये तो प्रूफ हो गया। सरफेस एरिया इज सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम, मिनिमम इस पॉइंट में r इक्वल्स टू दिस। अब ये जो है h का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कितना होता है। तो यहां पर हियर फ्रॉम वन क्या था? सो फ्रॉम 1 ये था v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h। सो v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, दैट मीन्स v by pi whole to the power 2 by 3 into h. So that means v by pi whole to the power 1 minus 2 by 3 equals to h. So that means v by pi, इसका आंसर भी देखो 1 by 3 आ रहा है। So r equals to h equals to v by pi, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। So height is equal to base radius, and that was the proof. According to the question, you needed to prove that the height of the cylinder is equal to the base radius of the cylinder, and the condition is what? This surface area of the cylinder should be minimum. So it is proved. So now you can see this type of questions are very important and very tough also. In the initial level, I think in the beginning, actually this whatever was considered as the given condition and this required condition, that is the main part. Okay, so if you have got the idea regarding the beginning, that means regarding starting actually from where this solution is going to be started. If you have got the idea once, then I think the rest of the questions will be same, just like your the previous solutions.
first order differentiation and these values will be found, and after that second order differentiation, and the second order differentiation should be checked at the particular point whether it is negative or positive. Rest of the parts are same, but the given part and the required part, these two parts are very very important. So whenever just you will be provided the question, at first you need to figure out the condition, which one is condition and which one is the requirement. Okay, so आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में और भी इस टाइप का क्वेश्चंस करेंगे. बहुत सारा क्वेश्चन, मिक्स एंड मिनिमम इज वेरी फास्ट चैप्टर. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. इफ यू लाइक माय वीडियोस, इफ यू लाइक माय लेक्चर्स, देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल फॉर द बेटर एक्सपीरियंसिंग, फॉर द बेटर mathematical solutions. Okay, thank you very much for joining my classes. Bye and Jai Hind.